In the name of Allah the Beneficent, the Merciful, my dear friends, how are you doing? Fine. Thank you very much indeed. We are having actually the next lecture. It's about back to basics, the use of can and could, or some more uses. It's lecture number 12C. इसके पहले 12A था about the ability of can and could, और 12B था about the extended uses, extended practice actually. 35 sentences में हमने practice की yesterday, and today we are going to understand some further uses actually, some smart uses of can and could, और वो uses कौन से? Number one, request, actually it's number two. Number one was ability, जो हमने lecture 1 में किया. Number 2 is request, इसका इस्तेमाल है. फिर number 3 is permission, and number 4 is offering help, and number 5 is possibility, and number 6 is general truth. और कुछ एक example और भी है at the end of the lesson. We'll be talking about it later at the end of the lecture. So let's get started. Requests की जब बात करते हैं, you can also use can for making request sentences. For example, the sentence number 1 is, can you show me the bathroom please? Please जो है brackets में है. It means that कि आपके पास option है please को बोल के sentence को more polite करने की. अगर आप please के बगैर भी बोलेंगे तो sentence is a request. Actually sometimes tone आपकी बोलने की set करती है कि ये क्या आप order है या request है. So can you show me the bathroom please? It is the first request. और उसके बाद फिर can I come with you on the trip? Can I come with you on the trip? Can I come with you on the trip? ये आपकी second आपके पास option है. I mean second sentence आपने बनाया है can I के साथ, और फिर तीसरा sentence आपके पास example का है can I get the bill. और अगर can I के बाद the please भी इस्तेमाल करते हैं, the sentence becomes even more polite, और ये polite बनता है sentence please के साथ can I please get the bill, और उसके बाद क्या मैं मेहरबानी से बिल हासिल कर सकता हूँ. Can we get a bottle of water? Can we get a bottle of water? It's also a request. Can I get a bottle of water? It depends कि आपकी tone जो है requestish है अगर, so it will be a request. Otherwise, it can be a simple sentence, simple statement, but interrogative one, सवालिया अंदाज से. Can we get a bottle of water? और उसके बाद फिर can you please drop me to the office today? Please के साथ आपने polite किया sentence को, otherwise it was a request, और request polite हो गई. Can you please drop me to the office today? और उसके बाद देखिएगा हमारे पास कुछ more polite request with could. आप देखिए जरा could के साथ can की बजाय अगर आप could को इस्तेमाल करें, sometimes the sentence becomes polite, बल्कि always अगर आप can को replace करें could के साथ, और for example can you call me later please की बजाय अगर आप कहेंगे could you call me later please, so इसमें request का element भी है और politeness का element भी है. और polite expressions बोलते हैं जब आप अजनबी लोगों के साथ होते हैं और ज़रा थोड़े सीनियर लोगों के साथ होते हैं, आपका इज्जत का ताल्लुक उनके साथ होता है, आप कैन की बजाय कुड का इस्तेमाल करते हैं, थोड़े आप फॉर्मल हो जाते हैं. फॉर्मेलिटी का इजहार है इस कुड के अंदर, पोलाइटनेस का इजहार भी है. सो कुड यू कॉल मी लेटर प्लीज, क्या मुझे बाद में मुलाकात मुझसे कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं. could I see your ID card? अगर आप किसी कहें can I see your ID card, it can be impolite. अगर आप जरा थोड़ा सा could का इस्तेमाल करें तो फिर जरा पोलाइटनेस आ जाएगी इसके अंदर, और फिर साथ साथ अगर प्लीज का इस्तेमाल भी करें तो it will be even become further polite. So could I see your ID card please? ये भी आप इस तरह सेंटेंस भी बोल सकते हैं could को यूज करते हुए. फिर इसके बाद परमिशन के हवाले से हमारे पास सेंटेंसेस हैं. जो परमिशन है ये नंबर 1 पे टेकिंग परमिशन, किसी से परमिशन लेते हुए. फॉर एग्जाम्पल कैन वी लिव हियर फॉर अ डे, क्या हम एक दिन के लिए यहाँ ठहर सकते हैं. कैन वी लिव हियर.
लेकिन थोड़ी परमिशन लगता है कि ये फ्रेंडली परमिशन है। अगर आप किसी दोस्त से बात करेंगे परमिशन के हवाले से तो फिर आप कैन के साथ परमिशन लें तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर। लेकिन अगर आप परमिशन लेते हैं किसी अजनबी से या अपने से बड़े या सीनियर से तो फिर उसमें अदब का पहलू भी शामिल होता है, तो फिर आप कैन की बजाय कुड का इस्तेमाल करेंगे या यहाँ एक मे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मे की हमारी एक्सरसाइज इसके बाद फॉलो करेगी आफ्टर कुड कंप्लीशन, तो मे का इस्तेमाल भी हो सकता है यहाँ। सो हमारे पास जो ऑप्शन है कैन आई, कैन यू, मे, सॉरी, कैन और कुड और मे वी लिव हियर फॉर अ डे। आप कैन का इस्तेमाल फ्रेंडली हो जाएगा, कुड और मे का इस्तेमाल जरा फॉर्मल होगा और पोलाइट हो जाएगा जी यूज। तो पोलाइटनेस लाने के लिए परमिशन आप बोल ले रहे हैं क्या मैं एक दिन के लिए यहाँ ठहर सकता हूँ, कयाम कर सकता हूँ, या कैन कुड मे वी थ्रो द पार्टी एट योर प्लेस, क्या आपकी जगह पर हम पार्टी का इंतजाम कर सकते हैं। थ्रो द पार्टी, पार्टी का अरेंज करना, पार्टी का इंतजाम करना। सो ये आप कैन के साथ भी कर सकते हैं फ्रेंडली वे से। कुड और मे जरा फॉर्मल होगा और पोलाइटनेस का एलिमेंट उस पर ज्यादा आ जाएगा जी। टेकिंग परमिशन, गिविंग परमिशन, इजाजत देते हुए, यू कैन चूज एनीथिंग फ्रॉम द लिस्ट। आप अगर आपसे पूछता है कैन आई चूज, सॉरी, टेकिंग परमिशन, कैन आई चूज एनीथिंग फ्रॉम द लिस्ट, आप कह सकते हैं यस यू कैन चूज एनीथिंग फ्रॉम द लिस्ट। आप लिस्ट से कुछ भी ले सकते हैं। ये भी आप परमिशन देते हुए, यू कैन टेक माई कार टू पिक हर अप, उसे पिक करने के लिए आप मेरी गाड़ी को इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर गिविंग परमिशन, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट, आई एम द बॉस हियर, ये अथॉरिटी भी है और उसके पास सेल्फ एज्यूम्ड परमिशन है, या ही हैज बीन डेलीगेटेड दिस परमिशन बाय सम अदर अथॉरिटी। I can do whatever I like, whatever I want, I'm the boss here. फिर prohibit करते हुए, refusing permission, या permission करने भी मानी, मना करते हुए, ममनू कोई चीजें होती हैं उसके लिए can't का इस्तेमाल करते हैं। You can't park your car here. अगर आपसे पूछते हैं can I park my car here, आप giving permission, yes you can park your car here, मना करते हुए you can't park your car here। ये लेकिन ये लंबे sentences हैं। अगर आप इसको शॉर्ट क्वेश्चंस में, शॉर्ट आंसर्स में करेंगे, कैन आई पार्क माई कार हियर, यस यू कैन, और नेगेटिव हो तो फिर क्या होगा, रिफ्यूज करते हुए, नो यू कांट, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, यू कांट पार्क योर कार हियर। ओके, द नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रन बिलो 8 years of age कांट एंटर द हॉल। जो बच्चे 8 साल से कम उम्र वाले हॉल में एंटर नहीं हो सकते हैं, ये भी कांट का इस्तेमाल है। यहाँ प्रोहिबिशन है और प्रोहिबिट कर दिया गया है। यू कांट यूज द ऑफिस रिसोर्सेज फॉर योर पर्सनल यूज। आप दफ्तर के रिसोर्सेज को अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए नहीं कर सकते, मतलब यू कांट यूज ऑन पर्सनल लेवल ऑफिस के रिसोर्सेज को। हमारा नेक्स्ट इस्तेमाल है जो द नंबर 4, ऑफरिंग हेल्प। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, या कैन आई ड्रॉप यू समवेयर, कहीं मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूं, या कैन आई गेट यू समथिंग टू ईट, क्या कहीं कुछ खाने के लिए आपको ला के दे सकता हूं, कैन आई डू समथिंग फॉर यू, आपके लिए मैं कुछ कर सकता हूं, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं, कैन वी टेक केयर ऑफ योर एकेडमिक एक्सपेंसेस, क्या हम आपके तालीमी अखराजात का ख्याल रख सकते हैं। ये ऑफरिंग हेल्प के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसका यूज नंबर 4 है जी। यूज नंबर 5 है पॉसिबिलिटी, इम्कान के लिए। पॉसिबिलिटी के लिए आप मे और माइट का इस्तेमाल भी करते हैं, यहां कैन और कुड का इस्तेमाल भी हो सकता है। यहां इम्कान के लिए इस्तेमाल किया है, डोंट टेल हिम एनीथिंग अबाउट द पार्टी, इसे पार्टी के लिए कुछ मत बताओ, ही कैन गेट अपसेट, वो अपसेट हो सकता है। इम्कान है कि वो अपसेट हो जाए। पॉसिबिलिटी, कैन पॉसिबिलिटी के लिए यहां इस्तेमाल हुआ है जी। अगला सेंटेंस है, इट कैन गेट रियली कोल्ड हियर इन दिसंबर, दिसंबर में यहां काफी ठंड हो सकती है। इम्कान की बात हो रही है जी इट के साथ। द शेयर मार्केट इज बूमिंग दीस डेज, आजकल जो है वो शेयर मार्केट बूम कर रही है। यू कैन अर्न अ लॉट फ्रॉम इट, आप इससे काफी कुछ कमा सकते हैं। एक जनरल ट्रूथ्स के लिए भी आप इसका यूज नंबर 6 है, जनरल ट्रूथ्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल, fireworks can frighten pets,
फायरवर्क्स जो है वो जो आतिशबाजी पेट्स को, जो पालतू जानवर होते हैं, उनको डरा सकती है, इम्कान है। जनरल ट्रूथ्स की बात हो रही है। ये हो सकता है फायरवर्क्स जो पेट्स को डरा सकते हैं। और फ्लड्स कैन बी वेरी डेंजरस, ये भी जनरल ट्रूथ है। जनरल ट्रूथ के लिए फ्लड्स बहुत डेंजरस हो सकते हैं। एक्सरसाइज कैन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस, एक्सरसाइज आपको आपके स्ट्रेस को कम करने में मदद कर सकती है। अपीयरिंग इन IELTS विदाउट प्रिपरेशन कैन बी डिफिकल्ट, ये भी बात हो रही है, जनरल ट्रूथ की बात हो रही है कि IELTS में अपीयर होना प्रिपरेशन बगैर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। हु ओन्स दिस ब्लू कोट, यहां एक एग्जाम्पल हमारे पास है क्वेश्चन आंसर की सूरत में। हु ओन्स दिस ब्लू कोट, ये ब्लू कोट किसका है या कौन इसकी मलकियत रखता है? इट मस्ट बी श्योर्स, ये यकीनन आपका होना चाहिए। ये स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। और इसके लिए मस्ट को रिफ्यूज करने के लिए कांट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इट कांट बी माइन, ये मेरा नहीं हो सकता। इट्स टू बिग, ये बहुत बड़ा है। ये एक डिफरेंट इसका यूज था, मैंने बताया कि मस्ट जब आप इस्तेमाल करें और उसको रिफ्यूज करने के लिए, स्ट्रॉन्ग इम्पॉसिबिलिटी के लिए आप जो है वो इस्तेमाल करते हैं कांट का। और एक और चीज देखिएगा, कैन नॉट जब आप लिखेंगे तो कैन और नॉट अलग अलग नहीं लिखेंगे, इकट्ठा लिखेंगे। और कैन नॉट ऐसे लिखेंगे और कांट उसका जो कॉन्ट्रैक्शन है उसका इस तरह इस्तेमाल करेंगे। एक ऑप्शन के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन गो टू स्विट्जरलैंड, और यू कैन गो टू इंग्लैंड, और यू कैन गो टू स्पेन फॉर योर समर वेकेशन। समर वेकेशन के लिए कैन का इस्तेमाल किसके लिए हुआ? ऑप्शंस के लिए भी हुआ। सो ऑप्शंस की बात करते हुए भी आप इनको यूज कर सकते हैं कैन को। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस लेक्चर वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने कुछ मोर यूजेस, सम मोर यूजेस ऑफ कैन। सबसे प्राइमरी यूज का इसका एबिलिटी है, उसको हमने लास्ट लेक्चर में देखा, द लास्ट बिफोर इट, उससे पहले वाले लेक्चर में। उसमें था आपके 7 आपके स्ट्रक्चर्स को हमने डिस्कस किया। कैन बी, could be, could have been, will be able to, past, present ability, past ability, फिर past ability and future ability हमने डिस्कस किया। और उसको हमने स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया। और उसके बाद फिर एबिलिटी के लिए हमने स्ट्रक्चर्स बनाए, उसकी प्रैक्टिस की। जो C12A था। फिर 12B जो लेक्चर था हमारा, उसमें हमने कल 35 सेंटेंसेस में एक्सटेंडेड प्रैक्टिस की, उसकी मजीद उसकी प्रैक्टिस की 35 सेंटेंसेस की सूरत में, कि किस तरह से हर सेंटेंस को पॉजिटिव या नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं आप। और आज हमने जो है वो, और फिर उसके बाद 35 सेंटेंसेस की प्रैक्टिस की। और आज की जो लेक्चर था, इट वाज अबाउट some more uses of can and could। और वो क्या है? रिक्वेस्ट है, परमिशन है। परमिशन में भी हम आस्किंग फॉर परमिशन, टेकिंग परमिशन, गिविंग परमिशन, प्रोहिबिटिंग परमिशन, और उसके बाद फिर ऑफरिंग हेल्प, और उसके बाद फिर ऑफरिंग हेल्प के बाद फिर पॉसिबिलिटी, और उसके बाद जनरल ट्रूथ्स की बात की, और ऑप्शंस की बात। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर एक्सप्रेसिंग डिफरेंट ऑप्शंस, ये बात हमने आपसे की है। आई होप दिस लेक्चर वाज very significant in understanding the various uses of can and could, and कैसे sometimes आपको permission में can को may और could replace करता है in order to make sentences even more polite, और उसको more formal बनाने के लिए, ताज़ीम और इज्जत का पहलू उसमें पैदा करने के लिए। So it was everything regarding this can and could, and I hope this would have added some information regarding the uses of these very important modal verbs. कोई आपका ऐसा एस्पेक्ट है जिसको आप डिस्कस करना चाहते हैं? No. Any questions in your mind, please? No. Kal most probably we'll be talking about some idiomatic and common expressions of can, उसको डिस्कस करेंगे और उसको फिर हम रैप अप करेंगे। Tomorrow is going to be the last lecture regarding this very important auxiliary modal auxiliary verb. So until then, God bless you all. Take care of yourself, and bye-bye. Thank you.